Hello students, this is the last video of linear equation. Hope you are enjoying this. Hope you will get every logic. If you are watching all the videos of the linear equation, we have prepared this chapter in 12 videos. इन वीडियोस में हमने आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाए हैं. इन क्वेश्चंस में हमने आपको कंसेप्ट डेवलप करना सिखाया है. हमने मैथ्स को सोचना सिखाया है. आफ्टर एवरी वीडियो वी आर गिवन यू ए वर्कशीट, असाइनमेंट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर वी विल गिव यू ए टेस्ट आल्सो. कीप कनेक्टेड, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग मैथमेटिक्स विद अरुण. Exercise 2.2 question number 10. Number of boys and girls are in the ratio of 7:5. आप लोगों को रेशियो वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत क्लियर है. Boys upon girls, that is given 7/5. It means, what does it mean? It means boys is equal to 7x and girls is equal to 5x. मैंने आपको बता रखा है रेशियो में एक्स एक्स लगा सकते हैं. आप एक्स नहीं लगाने जाते वाई भी लगा सकते हैं. अगली लाइन पढ़ेंगे. बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. इट मींस बॉयज आर का मतलब इक्वल टू 8 मोर का मतलब 8 प्लस देन गर्ल्स का मतलब गर्ल्स. इट मींस 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 5x. I am not focusing on these simple equations. My work is to clear your logic. जहाँ तक x की वैल्यू 4, so बॉयज आपके पास हो जाएंगे 7 into 4 28, गर्ल्स हो जाएगी 5 into 4 20, and total strength you will get 40. It is one of the easiest question. Hope you will have no problem in it. Coming to the next very important. It is discussing about a group of herd of deer. सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चंस है उसे आप 2 बार रीड करा करें. 2 बार रीड करने के बाद जो अंडरलाइन करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, आई विल रीड इट फॉर यू इन दिस क्वेश्चन. हाफ ऑफ द डियर इन ए हर्ड आर इन द फील्ड एंड दे आर ग्रेजिंग. तो आई विल नॉट राइट यू कंप्लीट लाइन. Just focus on grazing in field and half of the deer. Clear? तो हमारी स्टार्ट होगी. That is exercise 2.4 question number 8. Let total deer are x. Let total deer are x. Then grazing कितने कर रहे हैं? Grazing कर रहे हैं half of the total. That is half x. Clear? आगे 3/4 of the remaining are playing nearby. हाफ तो ग्रेज कर रहे हैं, 3/4 प्ले कर रहे हैं आसपास. बट एक बार ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग जितने बचे उसका 3/4. तो यहां जो बच्चे गलती करते हैं आपको नहीं करनी है. अब आप निकालेंगे रिमेनिंग डियर. रिमेनिंग डियर बचेंगे x माइनस 1/2x. टोटल डियर x थे, रिमेनिंग हो गए हाफ x. 2 एलसीएम ले लिया, दैट इज 1/2x. रिमेनिंग डियर बच गए 1/2x. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्लेइंग कितने कर रहे हैं? प्लेइंग कितने कर रहे हैं? तो प्लेइंग जो कर रहे हैं नियर बाई, दैट इज 3/4. 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग. दैट इज 3/4 into 1/2x. दैट इज 3x/8. बस यहां तक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप यहां तक का काम नोट करें, है ना. देन आई विल रब इट टू क्लियर. नोट इट डाउन.
Hope you note it down all. Grazing deer, playing deer, and those who are drinking water are given by 9 in the questions. Now, total deer are X. Total deer, some are grazing, some are playing, and some are drinking water. And the sum of these is X. Now, grazing deer is half of the X. Playing deer is 3x by 8 plus 9, that is equal to. Clear? What will you do? You will take x this side and 9 this side, because constant should always be moved in that side. That is equal to minus 9. 9 that should go minus 9. We got x by 2, 3x by 8 minus x. That x come to the minus. 8, 2, 8 and 1. आप जब इसका आंसर निकालोगे तो वो 8 आएगा बेटा. 2 से 8 को डिवाइड करा 4, 4 के ऊपर है x, तो हियर आएगा 4x. 8 से 8 कैंसिल, दैट इज 3x. 1 से 8 को डिवाइड करा तो 8 into 8x, that is minus 9. Clear? 4 और 3 7x, 7x minus 8x. Sign are different. Subtract 8x में से 7 गया वो x, but 8x बड़ा है तो उससे पहले आएगा minus 9. Minus x upon 8 is equal to minus 9. Clear? Now you will cross the multiply. 9 is 72. And whenever we have the sign, both side minus sign, you know, we will cancel it. Or you can say इस minus x को उधर ले जाए, 72 को यहाँ ले जाए. X की वैल्यू 72. It means total deer are 72. That is a very very important question. Please note it down, rewind the video and focus on the concept. मैं एक वर्ड बार बार यूज करूंगा, कंसेप्ट, लॉजिक एंड वे ऑफ कैलकुलेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू फाइंड आउट? नोट इट डाउन एंड वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. हेलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे हम चल रहे हैं. देयर इज अ वेरी लॉन्ग एंड टफ क्वेश्चन. Hasan buying the shirt cloth at the rate of ₹50 per meter and the trouser cloth is 90 rupees per meter. ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में आपको डाटे पे फोकस करना है, क्या चीज आपके काम की. For every 3 meter of shirt cloth he buys 2 meter of trouser cloth. दो बातों का ध्यान रखिएगा. हम लोगों को पूछा गया है, इसमें उसने पूछा है how much he buy shirt cloth, how much he buy cloth, how much he buy trouser. तो सबसे पहले हमारे को दो चीजें हैं. एक है हमारे पास शर्ट क्लॉथ और एक हमारे पास है ट्राउजर क्लॉथ. ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होते हैं, एक दो क्वेश्चन में फादर एंड सन होता है, सबसे पहला काम हमारा उनका काम होता है उन्हें कन्वर्ट करना एक्स की फॉर्म में. तो कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें दोनों में रिलेशन निकल के आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ he buys 2 meter of trouser cloth. It means given है शर्ट क्लॉथ अपॉन ट्राउजर क्लॉथ इज इक्वल टू 3/2. दोबारा देखिएगा, इस लाइन का मतलब है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर क्लॉथ.
जितना वो 3 मीटर का कपड़ा शर्ट के लिए खरीदता है और वो 2 मीटर का कपड़ा ट्राउजर के लिए खरीदता है। इट मीन्स नथिंग बट द रेशियो ऑफ शर्ट अपॉन ट्राउजर इज इक्वल टू 3/2। So it is very evident, it is very clear that shirt cloth is 3x and trouser cloth is 2x. First line you should be very clear, then what are you going to get? इस लाइन को आपको मैंने 2 बार बता दिया है कि 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो जब भी वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तभी वो 2 मीटर ट्राउजर का भी कपड़ा खरीदता है। क्लियर? नाउ आपने इस लाइन का काम कर दिया, ये लाइन आपके लिए खत्म हो गई। अब आते हैं इस लाइन के लिए। शर्ट क्लॉथ इज 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट का क्लॉथ हमने मान लिया है, हमने 3x मीटर खरीदा है, ये 2x मीटर खरीदता है। अब शर्ट के लिए गिवन है 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज, इसलिए 3x मीटर की क्लॉथ होगी 50 इंटू 3x, दैट इज 150x रुपीज। ध्यान रखिएगा शर्ट की जो कीमत है वो आपके पास आ गई 150x रुपीज। ये उसकी कॉस्ट आ गई शर्ट के कपड़े। अगेन क्वेश्चंस को ब्लॉक में समझिएगा, नोट करिएगा, तब आप काम करेंगे। इसी तरह ट्राउजर के लिए 1 मीटर जो क्लॉथ है उसकी जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज। हमने ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है 2x मीटर, तो 2x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 90 इंटू 2x, दैट इज 180x। नो डाउट क्वेश्चंस आर लिटिल डिफिकल्ट बट इट इज वेरी पावरफुल। सबसे पहला काम दिस वन, इससे आपने इसको लेट करा, इससे आपने शर्ट की कॉस्ट निकाली, इससे आपने ट्राउजर की कॉस्ट निकाली। अब हमारे पास इन 2 लाइनों का काम खत्म हो गया है। फाइनली हम लास्ट लाइन पे जाते हैं। शर्ट, हसन सेल द शर्ट एट 12% प्रॉफिट। अब व्हाट इज अबाउट द प्रॉफिट? प्रॉफिट, हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज, हाउ विल यू कैलकुलेट द प्रॉफिट? क्लियर? लेट इट सी नाउ। प्राइस फॉर शर्ट that is 150x rupees. Clear? Profit is 12%. Profit is always calculated on the cost. तो ध्यान रखिएगा ये आपके पास आएगा 150x into 12/100. अगर ये 10% होता तो it will come 10/100. If it will be 20%, then it will be 12/100. Clear? 0 से 0 कैंसिल करा, 15 की आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will come 180x. So, sale price for shirt is 18x. Do the chapter in module. Sorry, that is not the sale price, that is the profit. सबसे पहले हमने शर्ट की कॉस्ट निकाली, फिर हमने प्रॉफिट निकाला, और प्रॉफिट के बाद मैंने क्या करा आपके लिए? अब मैं निकालूंगा सेल प्राइस। सेल प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 150x, प्रॉफिट आया मेरे पास 18x, तो शर्ट की सेल प्राइस इज 168x. इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश नाउ। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है, क्वेश्चन को दोबारा देंगे। सबसे पहले हमने निकाला रेशियो 3/2 है, तो शर्ट का कपड़ा हुआ 3x, ट्राउजर का कपड़ा हुआ 2x। 1 मीटर शर्ट 50 रुपीज की, क्योंकि हमने 3x मीटर कपड़ा खरीदा है,
इसकी कॉस्ट हो गई 150x। ट्राउजर का कपड़ा लिया है 90 रुपीज का, तो 2x मीटर का कपड़ा हो गया, इसका प्राइस आपने निकाल ली। प्राइस अगर 150x है और प्रॉफिट 12% है तो प्रॉफिट आपका निकलता है ऐसे। शर्ट की सेल प्राइस निकल गई है, दैट इज 168x। अभी आपको ट्राउजर की सेल प्राइस और निकालनी है, क्योंकि ट्राउजर की प्राइस है 180x, प्रॉफिट आया है 10%। अभी आपको इस तरह से और काम करना है। बोर्ड आपका खत्म हो गया है भरना, तो सबसे पहले आप इसे पॉज करें, रिमाइंड करें, नोट आउट करें एंड ट्राई टू डू इट कंप्लीट विथ। तो बेटा जी हम लोगों को आपने यहां तक नोट कर लिया है। आगे ये बनता टोटल सेल इज दिस मच। टोटल सेल मतलब शर्ट की सेल प्लस ट्राउजर की सेल इज दिस मच। शर्ट की सेल आपके पास, शर्ट की कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई थी 168x। ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकालनी है। ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने, आपको मैंने कहा था आपने निकाल ली होगी, नहीं निकाली है तो मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे निकलेगी आपके पास, अगर आपने उससे पहले नहीं निकाली। ध्यान रखिएगा, ट्राउजर की कॉस्ट थी 180x, प्रॉफिट इस पर आया है 10%, दैट इज 180x इंटू 10/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, दैट इज 18x। ये आपके पास क्या आ गया बेटा जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट के आगे सेल प्राइस जो उसका होता है, मैंने आपको बताया वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 180x प्लस 18x, दैट इज 190। आपने प्रॉफिट निकाला शर्ट पे, आपने सेल प्राइस निकाला शर्ट का, आपने प्रॉफिट निकाला ट्राउजर पे, आपने सेल प्राइस निकाला इसका। गिवन है टोटल सेल इज इक्वल टू 36,600। दोनों को आप ऐड कर देंगे, 8 और 8 16, 366 इज इक्वल टू 36600। बाकी का काम आपके पास आसान हो जाएगा। x की वैल्यू 100 आ गई है। अब आपके पास सब कुछ आसान है। अगर आपसे ये पूछा जाए कितना कपड़ा उसने शर्ट के लिए निकाला तो 3x 300 मीटर। अगर वो आपसे पूछ रहा है ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा निकाला तो दैट इज 2x, दैट इज 200 मीटर। अगर वो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो दैट इज 180x। अगर वो आपसे शर्ट ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो दैट इज ट्राउजर की कॉस्ट थी 180x, शर्ट की कॉस्ट थी 150x। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको सब कुछ अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। क्लियर? जल्दी से इसे नोट करिएगा। होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन द क्लास। In case of any problem, any suggestion, any doubt, you can WhatsApp us on this, and you can also download our app from Play Store, that is Aroma. All the best. Bye bye. See you in next chapter.